Hello and welcome to another video. আমার নাম প্রতীক চক্রবর্তী. I am working as Senior Business Associate and Recruitment Manager with LIC in last 15 years. In this video, we will cover a very important and very wonderful plan of LIC, that is Jeevan Umang, and we will know the details of Jeevan Umang and how can we sell this plan. So without further delay, let's dive in and study Jeevan Umang in details. Jeevan Umang is called, also known as the plan of the century. इसको plan of the century भी बोलते हैं for many reasons, because and we will see all those reasons why it is called plan of the century. Now Umang means happiness, आनंद इसको बोलते हैं, and it's a limited payment with profits. उसका मतलब है you have to pay the premium for a short term of period and will get the benefit whole life. And it provides for annual survival benefit after PPT till maturity, that is age 100 or till earlier death. So this is a basic benefit of Jeevan Umang. Now, एक चीज आपको याद रखना है in case of Jeevan Umang while you are selling Jeevan Umang, that is lifetime guaranteed tax-free income. That is the whole purpose of this plan. इसका एक ही मतलब टैगलाइन हो सकता है, that is lifetime guaranteed tax-free income. Now, how is that possible और कैसे होगा? We will know in details. देखिए, हम कोई चीज क्यों खरीदते हैं? Why do you buy anything? Because अगर मुझे कोई need है, then only we buy. So you have to create a need among your customers. उनको आपको समझाना पड़ेगा कि आपको ये need है. Need for what? Need for pension. Need for survival benefit. Because आज के दिन में pension का rate only government pensions, that is a government का provision, is very less. Only 3 to 4% of people in India have access to a social pension, that is government supported pension. Otherwise 97% of population के पास आज pension का कोई provision ही नहीं है. So we have this Jeevan Umang can be a game changer for those people who are looking for a survival benefit or pension benefit after the age of 55 or 60. तो वो नीड हम लोगों को उनको क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल सजेस्ट जीवन उमंग और प्रेजेंट जीवन उमंग एज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. Now there are 3 steps of selling Jeevan Umang as per my analysis. Number 1 is select right prospects for Jeevan Umang and taking appointments. देखिए, Jeevan Umang is not for everybody. It's a premium plan, a special plan for special people. আজকের ডেটে আপনারা দেখবেন যে কোনো চ্যানেল, ইন এভরি সেলস চ্যানেল দেয়ার আর 2 ওয়েজ দ্য থিংস আর বিং সোল্ড. যদি আমরা গাড়ির ব্যবসাতে যাই, ইন কেস অফ মারুতি সেলস লোয়ার ক্যাটাগরি कार्स फ्रॉम अ डिफरेंट आउटलेट एंड प्रीमियम कार्स फ्रॉम नेक्सा. जो प्रीमियम कार है वो नेक्सा में बिकता है, और जो नॉर्मल जनरल कार्स है दे आर सोल्ड इन नॉर्मल आउटलेट्स. सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट 2 चैनल्स. One channel that will cater to your normal customers, normal clients, and another channel, a premium plan for premium prospects, your premium customers. So selecting the right prospect is step 1. Step 2 is need analysis and presentation. You need to create a need. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोल रहा था, I was suggesting that you have to create a need and present Jeevan Umang as a solution. And number 3 is closing the sale. Now moving on. There are 2 aspects of life insurance: early death and living too long. अगर कोई unexpected untimely death होता है, तो that is one aspect that covers insurance, वो cover करता है. Number 2 is living too long. For living too long मतलब without any pension or any economic support. Jeevan Umang is the only plan that covers both. जो 2 problems है life में, that solution is provided by Jeevan Umang in a very efficient way. हम लोग देखेंगे उसके बारे में. Now, what is the correct profile of a customer for Jeevan Umang? Ideal customer का profile कैसा होना चाहिए? तो we will look into that. See, the right kind of prospects for Jeevan Umang should be that age group between 25 to 45 working professionals. So jader age is between 25 and 45, they are the right type of people you should prospect for Jeevan Umang.
and the minimum income should be 30,000 per month. Another income should start from minimum 30,000. A niche income hole then they cannot afford Jivan Umang, because Jivan Umang jodio eta minimum sum assured is 2 lakhs, but you cannot sell Jivan Umang for 2 lakhs because the SB, which we will discuss later, will come around 15 to 60,000 per year, which is nothing compared to what they will need at certain age. तो जीवन उमंग आप उसी को बेचो, उसी के पास लेके जाओ जिनका एटलीस्ट मिनिमम 30, 40, 50,000 इनकम है पर मंथ, एंड देयर आइडियल एज शुड बी बिटवीन 25 to 45, and they are looking for a pension option. They are looking for a regular income, tax-free income at starting from age 55 or 60. So you have to look for these criteria before approaching a client for Jivan Umang plan. Now need analysis. Need को कैसे create करें? You have to talk to them about high inflations, high rise of costs. आपको नीड एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं कि नीड कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट नीड्स. उनको आपको समझाना पड़ेगा कि राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे फूड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, हेल्थ मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्टिंग्स, ये सब बढ़ रहा है. तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर. आपको एक ऑप्शन, आपको एक यू हैव टू क्रिएट सम प्रोविजन फॉर योर फ्यूचर, ताकि ये जो राइज ऑफ कॉस्ट्स है यू कैन एडजस्ट टू इट, अडेप्ट टू इट एंड लिव हैप्पीली. तो इसके लिए आपको एक पेंशन प्लान या एक सर्वाइवल बेनिफिट की जरूरत है. यू हैव टू क्रिएट ए नीड सच अ वे दैट दे एग्री कि हाँ मुझे ये चाहिए, आई नीड सम पेंशन ऑप्शन बिकॉज आई डोंट हैव एनी पेंशन. अगर वो जब कस्टमर एग्री करता है yes I need something, then only he will or she will buy. Now there are 3 benefits of Jivan Umang. Number 1 is death benefit, that is the death can occur within term, after term. You have to understand, यहाँ पे आपको 2 चीज समझना पड़ेगा. That is one PPT, that is premium paying term. For example, customer is paying for a term of 20 years. तो उसका PPT हो गया 20. Say he is currently his age is 30, उसका 30 साल का एज है, and he is opting for 20 years PPT. तो ওনার যখন 50 বছর या 50 years হবে, the premium will stop and he will be getting an SB from 50 years till 100 years or till the day he dies. তো সেটা আসবে সার্ভাইভাল বেনিফিটের আন্ডার. and finally maturity benefit only he will be getting if he attains an age of 100, which is less possibility. তো এই জিনিসটা বুঝতে হবে. Now these are some plan parameters in front of your screen. As you can see now, minimum age of entry is 90 days. आप एक छोटे से बच्चे को भी जीवन उमंग दे सकते हो, and term is 100 minus age at entry. For example, if somebody's age is 30, he is taking जीवन उमंग, तो term will be 100 minus 30, that is 70 years. Premium paying term, there are 4 premium options for paying their premium, that is 15, 20, 25 and 30. You have to select one out of this, and maximum age is given in front of you. Minimum age at end of whatever that is written. Minimum sum assured is 2 lakhs. As I was saying कि आप इसको 2 लाख sum assured के ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि SB, as you will see later, SB is 8% of sum assured. तो 2 लाख के ऊपर 8% comes to 16,000 per year. तो 16,000 is roughly 1,500 रुपया भी नहीं है महीने का. So it's a very small amount. उसके ऊपर लाइफ तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता. तो जीवन उमंग should not be sold at minimum sum assured. The sum assured should be minimum 10 lakhs. Minimum. That is my assessment. And maturity is 100, as I've already mentioned. Now let's talk about the death benefit. Death benefit during premium paying term, that is if the death occurs. अगर हम लोग लास्ट एग्जांपल को ही ले लेते हैं कि किसी का एज 30 है, इज ऑप्टिंग फॉर 20 years PPT, दैट मींस द पॉलिसी प्रीमियम विल एंड एट एज 50. तो अगर इस 20 साल में उनका डेथ होता है, तो ही विल बी गेटिंग सम एश्योर्ड प्लस बोनस एंड FAB, दैट इज फाइनल एडिशनल बोनस इफ दैट इज एलिजिबल. एंड डेथ आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, तो आफ्टर 50 साल के बाद अगर डेथ होता है तो ही विल बी गेटिंग सम एश्योर्ड प्लस बोनस टिल PPT. मतलब 20 साल जो उन्होंने प्रीमियम दिया उसका बोनस उनको मिलेगा.
and after that a differential bonus, we will come to that later, and FAB. तो जीवन उमंग ऐसा प्लान है एक जो as the age increases the death benefit rises. हम लोग देखेंगे उसके बारे में. Now this is the vital part of Jivan Umang, that is survival benefit. That is 8% of basic sum assured payable every year. Now 8% tax free. ये आपको समझना पड़ेगा, and this is the main highlight of Jivan Umang, because right now, as per my understanding, India में apart from mutual fund and share bazaar, 8% per year किसी इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल नहीं है, and this is guaranteed and this is fixed. 8% is fixed for lifetime. चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, this 8% will remain as it is. It will not change. This is the basic crux of Jivan Umang, the highlight of Jivan Umang, and this will continue till the age of 100 or death, whichever comes early. तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, and you have to highlight, you have to present the plan based on this fact, okay, which will only happen in case customer attains an age of 100. अगर 100 साल वो जिंदा रहता है, then only he will be getting maturity benefit, otherwise death benefit automatically उनके फैमिली को मिलेगा. Now I come back to what I was mentioning earlier कि जीवन उमंग का सबसे बड़ा highlight is lifetime guaranteed tax free income. Lifetime, that is till 100 years or maturity or death of policyholder, guaranteed 8%, and it is tax free. You have to present depending on this theory. Now let's talk about bonuses. There are two types of bonus in Jivan Umang. एक हो गया आपका पीपीटी के अंदर बोनस और पीपीटी के बाद का बोनस. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल. तो पीपीटी का अंदर जो बोनस, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 रुपए LIC डिक्लेयर करता है, तो आफ्टर पीपीटी मतलब 20 साल या 25 साल के बाद जो पॉलिसी मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा, तो बोनस उसके ऊपर भी ऐड होगा, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ द बोनस ऑफ पीपीटी. एक एग्जांपल देखने से आई थिंक इट विल बी क्लियर. लेट्स सी एन एग्जांपल. सो दिस इज एन एग्जांपल. से एज एट एंट्री इज 25 इयर्स. कस्टमर का एज ले लेते हैं 25 साल, उसने पीपीटी लिया 25 साल का, दैट इज ही विल बी पेइंग प्रीमियम फॉर 25 इयर्स. तो उनका जब एज 50 होगा, ही विल बी गेटिंग अ मैच्योरिटी, एज भी स्टार्ट हो जाएगा. सम एश्योर्ड हम लोग पकड़ लेते हैं 10 lakhs. पॉलिसी टर्म होगा 100 माइनस एज एट एंट्री, दैट इज 25 इन दिस केस, दैट इज 75 इयर्स. बोनस ड्यूरिंग पीपीटी मतलब जो 25 साल ये जो प्रीमियम वो भर रहा है, इन दिस 25 इयर्स ही विल बी गेटिंग अ बोनस ऑफ 47, दैट इज डिक्लेयर्ड बोनस. LIC इसको डिक्लेयर कर चुका है ऑलरेडी. एंड आफ्टर पीपीटी, दैट इज उसका एज जब 50 पार हो जाएगा, तब भी बोनस ऐड होता रहेगा, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ व्हाट ही इज गेटिंग इन दिस पीपीटी. इसका हाफ 23.50 पैसा. नाउ एसबी कैसा मिलेगा? एसबी उनको 8% करके बेसिक सम एश्योर्ड आपको याद होगा इस 10 lakhs. तो 8% ऑफ 10 lakhs इज 80,000 उनको मिलता रहेगा टिल 50 years. दैट इज उसका एज अभी 50 है. 25 years में उसने पॉलिसी स्टार्ट किया, 25 साल प्रीमियम कंप्लीट किया, এখন ওনার এজ 50 থেকে he will be getting SB of 8%, that is 80,000 every year till his death or 100 years. So if we take an example कि उन्हीं 100 বছর অবধি বেঁচে আছেন, then total SB will be 40 lakhs, 80,000 into 50 years. Now maturity benefit, which is no slight possibility because 100 বছর বাঁচা it's very difficult. ধরে নিচ্ছি, let's assume कि the policyholder survives till 100 years. Now what we will be getting is sum assured plus bonus during PPT, that is 47 into 1000 sum assured in case of 10 lakhs policy sum assured into 25 years. তো এই টাকাটা সে পাচ্ছে, plus bonus after PPT, that is in this case 23.50 paisa into 1000 into 50 plus FAB. So 1 crore 27 lakhs 10,000 he will be getting as maturity at age 100. There are chances खूब कम that he will attain age 100, and there is a high possibility of early death. Means 100 साल के आगे उनका death हो जाएगा. In case of death benefit, let's work death benefit कैसे मिलेगा.
after 20 years, that is within PPT you mind it is 25 years, 20 বছরের মধ্যে যদি ওনার ডেথ হয় after 20 years, so sum assured that is 10 lakhs, bonus during PPT that is this figure, and FAB, तो 19,75,000 उसके नॉमिनी को मिलेगा ड्यूरिंग PPT. आफ्टर PPT मतलब पॉलिसी प्रीमियम खत्म हो गया है, SB भी चालू हो गया है, अगर उसके बाद डेथ होता है एज 75, you have to keep in mind example हमने क्या देखा, this is the example, age 25, PPT 25, तो 50 বছর 50 years है, ओनर प्रीमियम पेमेंट इज स्टॉप्ड, नाउ ही इज गेटिंग SB उनको मिलना चालू हो गया है. So assuming his death happens at age 75, that is 25 years after PPT, तो उसके नॉमिनी को क्या मिल सकता है, सम एश्योर्ड दैट इज 10 lakhs, बोनस ड्यूरिंग PPT, ये 25 साल में बोनस उसको 11,75,000 मिलेगा. एंड आफ्टर PPT 50 साल से लेके 75 साल तक, जो 25 साल का जो टर्म है जहां पे कोई प्रीमियम उनको देना नहीं पड़ रहा है, वो SB उनको मिल रहा है. इन दैट केस इट विल बी अराउंड 34 lakhs 40,000, दैट इज 5,87,000, एंड FAB दैट विल अराउंड कम अराउंड 34 lakhs. तो इन टोटल उनके नॉमिनी को 61,72,000 उनको नॉमिनी को मिलेगा आफ्टर PPT. So I hope the example clarifies the doubt and you have a clear idea कि benefit जीवन आनंद में इसको कैसे मिल सकता है. Now here is a very important topic, and I have taken this slide from my guru Kamlesh sir. Ticket size as on 31st March 2022. टिकट साइज मतलब एवरेज प्रीमियम कितना आता है जीवन उमंग में कितना आता है. एज यू कैन सी यहाँ पे आप देखो कि ये 2022 का फिगर है, थोड़ा एक साल पहले का फिगर है, फिर भी एवरेज प्रीमियम इज 54,000. जीवन उमंग में प्रीमियम इज कमिंग अराउंड 54,000 एवरी पॉलिसी कंपेयर टू ऑल अदर प्लान्स. तो जीवन उमंग इज अ बिग टिकट पॉलिसी, इसका एवरेज प्रीमियम काफी हाई है. एक जीवन उमंग आप अगर सेल करो दैट इज इक्वल टू 3 जीवन लाभ. जीवन लाभ इज ऑल्सो हाईएस्ट सेलिंग पे, आप देख सकते हो ये कितना सेल होता है जीवन उमंग, सॉरी जीवन लाभ अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ टोटल सेल. लेकिन जीवन लाभ का एवरेज प्रीमियम इज अराउंड 20,000, वेयर एज जीवन उमंग का इज रफली 54, मतलब 60,000 भी पकड़ सकते हैं. So it's almost 3 times of जीवन लाभ. तो 1 जीवन उमंग is equal to 3 जीवन लाभ. तो आप समझ सकते हो कि जीवन उमंग brings more premium and more premium means more commission. So you focus on जीवन उमंग as a premium plan for premium prospects. Now, as per my understanding, minimum ticket size of जीवन उमंग should be 60,000 per year. Other important aspect of जीवन उमंग is paid up value. Paid up value একটা খুব important জিনিস. यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलता है पेड अप में. अगर कोई कस्टमर पूरा प्रीमियम नहीं चलाता है, इफ ही डज नॉट पे द कंप्लीट प्रीमियम, तो जो बेनिफिट होगा दैट विल बी पेड अप. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेड अप पॉलिसी इज द वन इन विच ऑल प्रीमियम्स हैव नॉट बीन पेड. फॉर एग्जांपल 20 साल का कमिटमेंट था प्रीमियम देने का, उन्होंने 5 साल ही चलाया, तो सम एश्योर्ड विल बी लोअर्ड एंड बेनिफिट विल कंटिन्यू ऑन द रिड्यूस सम एश्योर्ड. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि से एग्जांपल सम एश्योर्ड इज 10 lakhs, PPT इज 20 years, लेकिन पॉलिसी सिर्फ 5 साल ही चलाया उन्होंने. तो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड कैसे हो जाएगा, 5 दैट इज जितना साल उन्होंने चलाया डिवाइडेड बाय 20 जो चलाना था इज इक्वल टू 2.5 लाख. तो 2.5 लाख विल बी रिड्यूस सम एश्योर्ड, एंड अगर उनका डेथ होता है तो 2.5 लाख के ऊपर पेमेंट होगा उनके नॉमिनी को. तो कुछ ना डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट गारंटीड है इसमें. सिमिलरली मैच्योरिटी भी उसी हिसाब से आएगा, एंड SB भी आएगा, SB भी 8% करके आएगा. लेकिन हाँ, सम एश्योर्ड एटलीस्ट 2 lakhs होना चाहिए, रिड्यूस सम एश्योर्ड भी 2 lakhs होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेम केस है, 10 लाख का सम एश्योर्ड, PPT इज 20 years, लेकिन सिर्फ 5 साल ही चलाया उन्होंने. तो मैच्योरिटी पेड अप विल बी 5 divided by 20 into 10 lakh, that is 2.5 lakh will be a maturity paid up sum assured, and survival benefit will be 20,000. कैसे? 2.5 लाख के ऊपर 8%. सिंपल.
तो 20,000 के लिए उनको मिलता रहेगा टिल 100 years और डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो ये एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है कस्टमर के दिया गया है कि पेड अप के ऊपर भी एसबी मिलेगा, पेड अप के ऊपर भी डेथ बेनिफिट मिलेगा एंड मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल जाएगा। Now loans are available in Jeevan Umang and surrender is also available। तो यहाँ पे आप देखो सरेंडर तो पॉलिसी टर्म के अंदर होगा ही, लेकिन आफ्टर पॉलिसी टर्म उनको लग सकता है कि मुझे अभी 25 इयर्स में पॉलिसी लिया, 25 इयर्स का पीपीटी, अभी उनका एज है 50, उन्होंने 10 साल एज भी लिया, 10 साल सर्वाइवल बेनिफिट एंजॉय किया एंड ही इज नाउ करेंटली एज 60। अभी उनको लग रहा है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए एसबी नहीं चाहिए, मुझे वन टाइम कम्यूटेशन करना है, तो ही कैन डू दैट। वो कितना मिलेगा उनको? 90% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफबी। तो ये जो पूरा पेमेंट है ही विल बी गेटिंग एनी टाइम, वन टाइम पेमेंट उनको मिल जाएगा और 60 इयर्स के बाद एसबी बंद हो जाएगा, उनको पूरा जो बनेगा उनका अमाउंट ही विल बी गेटिंग दैट। तो ये भी एक बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। आप या तो लाइफ टाइम के लिए पेंशन या एसबी एंजॉय करो, नहीं तो आप एट सर्टेन एज के बाद आपको लगता है कि ना मुझे पैसा चाहिए, तो आप सरेंडर करके पैसा ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल फीचर ऑफ जीवन उमंग। बोनस एफएबी हम लोग बात किए। Now let us work another example. For example, उनको 2 lakhs का पेंशन चाहिए। The customer wants 2 lakhs पेंशन, तो क्या करना पड़ेगा? एज 30, जीवन उमंग 30 इयर्स के लिए वो लेना चाहता है, 60 इयर्स से उनको एसबी चाहिए, 25 लाख का पॉलिसी होगा, एनुअल प्रीमियम विल बी अराउंड 80,000, एसबी 2 लाख एवरी ईयर। कैसे 2 लाख आया? 25 लाख के ऊपर 8%, फ्रॉम एज 60 to 99 मिलना चाहिए, तो एवरी ईयर 2 लाख करके आएगा। एंड अगर डेथ होता है तो अकॉर्डिंगली उनको मिलेगा, एंड अगर मैच्योरिटी ही सर्वाइव्स टिल एज 100 तो उनको यह पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप देखो एक वंडरफुल एक फीचर है, जैसे जैसे एज बढ़ता रहेगा, अभी 40 एज है उनका, 30 एज में पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट किया था, डेथ कवर था 25 लाख का, लेकिन 10 साल के बाद डेथ कवर गेट्स इंक्रीज टू 37,25,000 एंड एज द एज कंटिन्यूज, as the age increases, the life cover also, death cover also increases. At age 80 it becomes 1,62,75,000। कैसे इंक्रीज हो रहा है? सम एश्योर्ड के साथ बोनस भी ऐड होता जाता है, and as the bonus gets accrued to sum assured, death cover also increases। तो यही है ब्यूटी है जीवन उमंग। I hope this is clear। Now why should you sell जीवन उमंग? For देखिए, मैं पहले ही बोला था कि पेंशन क्यों चाहिए। पेंशन इसीलिए चाहिए क्योंकि अभी इंडिया में प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, और जो है वो सफिशिएंट नहीं है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कीप्स इंक्रीजिंग, वी हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट लाइफ, सिक्योर फ्यूचर, वी नीड ऑल दिस। लेकिन एक प्रोविजन भी तो क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वहां से एक रेगुलर इनकम आए, टू फाइट द राइज ऑफ कॉस्ट। सी स्टैटिस्टिक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। Population with pension is only 3.55%. Population without pension is almost 97%. तो एक ह्यूज मार्केट है जहाँ पे आप लोग ये पेंशन प्लान पिच कर सकते हो। जीवन उमंग को आप सजेस्ट कर सकते हो एज अ वेरी गुड ऑप्शन टू फाइट द राइज ऑफ कॉस्ट, इन्फ्लेशन। इसके ये फाइट कर सकते हैं, एक रेगुलर इनकम आ सकता है। Now, why should you sell Jeevan Umang plan? Let's summarize now. No, there are 6 reasons I will give you to sell Jeevan Umang. Number 1 is Jeevan Umang is the only plan available for both savings as well as retirement planning. Savings क्यों और retirement क्यों? जैसे मैंने बोला कि अगर उनको SB चाहिए, he can enjoy his SB at certain age. अभी मान लो कि उनका एज 25 है जब उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट किया, he takes a term of 25 years. तो at age of 50 एसबी स्टार्ट हो जाएगा मिलना 8% करके सम एश्योर्ड के ऊपर। नाउ ही हैज एंजॉयड से 10 इयर्स ऑफ एसबी, अभी उनका एज है 60 इयर्स। तो 60 इयर्स में उन्होंने 10 साल उन्होंने एसबी लिया, अभी उनको लग रहा है कि नहीं मुझे और एसबी नहीं चाहिए, मुझे आई वांट टू कम्यूट द एंटायर
थिंग, तो सरेंडर करके उन्होंने 90% वो जो फ्यूचर जो अमाउंट था 90% ऑफ सम एश्योर्ड एंड बोनस एंड एफएपी वो ले सकता है। इन दैट वे एक कम्यूटेशन भी कर लिया, और अगर वो नहीं चाहते कि नहीं, उनको लगता है कि नहीं वांट्स अ लाइफ टाइम पेंशन, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जीवन उमंग के अलावा और कोई प्लान में एलआईसी में नहीं है। रीजन नंबर 2, गारंटेड एन्युटी, गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम। जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था 8% करके हर साल मिलता रहेगा। दैट इज ह्यूज थिंग इन इंडिया करंटली। 8% किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो यू शुड कैश ऑन इट एंड सेल इट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। रीजन नंबर 3, हाई कवर विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। डेथ कवर जैसे मैं सजेस्ट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया कि एज द एज इंक्रीजेस डेथ कवर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। रीजन नंबर 4, होल लाइफ प्लान, जो बेस्ट एसेट क्रिएशन हो सकता है। जैसे मैंने एचबी लिया एंड एज ऑफ 75-80 कस्टमर डाइज, तो ही विल बी लीविंग अ ह्यूज एसेट फॉर हिज फैमिली। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सा एक एडवांटेज है जीवन उमंग के ऊपर। बोनस एंड एफईबी पेएबल इवन इफ द पॉलिसी गेट्स पेड अप। अगर कस्टमर पूरा प्रीमियम नहीं दे पाता है, he pays for at least 5 years or 6 years instead of the total 20 years or 25 years का plan, तो the sum assured gets reduced but benefit continues। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है only for जीवन उमंग। And finally it's a all in one concept, guaranteed tax free liquidity, high risk coverage, emergency loan facilities, एनी टाइम आप ले सकते हो, आप उसको कम्यूट भी कर सकते हो। दिस ऑल इन वन है सुपर प्लान जो एलआईसी ऑफर कर रहा है, एंड इट्स सेलिंग लाइक एनीथिंग, एंड यू मस्ट पार्टिसिपेट एंड सेल जीवन उमंग अकॉर्डिंगली। यू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10, 20, 25 पीपल जो जीवन उमंग ले सकता है, अप्रोच देम, यू क्रिएट अ नीड, प्रेजेंट जीवन उमंग एंड sell them, and the scope for जीवन उमंग is huge। Let's work another example, थोड़ा और समझते हैं इसके ऊपर, और then we will end it with some final points। Now this is a beautiful present quotation, sum assured is 30 lakhs। just कस्टमर को ऐसे आपको प्रेजेंट करना है, जैसे टैग लाइन, और ऐसे आपको प्रेजेंट करना है कस्टमर को, just pay 2,40,000 for 15 years and get lifetime pension for 2,40,000 lifetime। तो इसका कैसे होगा? एज 35, कस्टमर का एज इज फॉर एग्जांपल 35, इज टेकिंग अ पीपीटी ऑफ 15 years, तो एट एज ऑफ 50 प्रीमियम स्टॉप्स। अभी 50 years से हर साल 2,40,000 कैसे मिल रहा है? क्योंकि 30 lakhs का 8%, दैट इज 2,40,000 एवरी ईयर इज गेटिंग टिल एज ऑफ 75। सपोज हिज डेथ हैपेंस एट एज ऑफ 75, तो उनका जो नॉमिनी है उनको 1,30,00,000 मिलेगा एज डेथ बेनिफिट, नहीं तो मैच्योरिटी में ये पैसा उनको मिल सकता है। सिमिलरली इफ यू वर्क एन एग्जांपल ऑफ सम एश्योर्ड 50 lakhs, तो आपको ये बोलना है कस्टमर को कि जस्ट पे 4 lakh फॉर 15 years एंड गेट 4 lakhs फॉर लाइफ टाइम। कैसे? इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सिमिलरली अगर इफ यू फोकस ऑन if we focus जीवन उमंग and present it in a smaller sum assured way, the tagline will be just pay 1,20,000 for 15 years। in this case sum assured will be 15 years। और अगर ये 15 साल से आप थोड़ा उसको पीपीटी बढ़ा देते हो, if you opt for 20 या 25 years, तो premium will come down। तो just pay 1,20,000 for 15 years and get lifetime pension of 1,20,000 every year। कैसे हो रहा है? It's in front of you। So these are just some suggestions, some one-liners you can present it to your clients, and it feels attractive, तो उनको समझ में भी आएगा and it will be easy for you to sell।